Viewers and listener, how are you today? Pretty good. Today we are going to begin Unit 7 and Level 2. And so far the communication of this unit is our concern. So we will talk about talking about activities and chores. There will be discussion about different activities and different chores. Chores mean घरेलू काम, घर के जो मुख्तलिफ काम हैं उनके बारे में डिस्कशन होगा. Similarly, asking and telling about plans and intention. We will talk about plans मंसूबों के बारे में and intention इरादों के बारे में कि किसी बंदे का इरादा क्या है मुस्तक़बल के बारे में और मंसूबा क्या है. So discussion will be there about plans and intention. Similarly, making prediction we will discuss. Prediction mean पेशन गोई, मुख्तलिफ पेशन गोइयों के बारे में डिस्कशन होगा. Similarly, asking for and expressing an opinion or advice. Asking for mean पूछना and expressing बयान करना, opinion or advice कोई राय या कोई नसीहत बयान करना. Similarly, in grammar portion we will talk about be going to plus infinitive. Question with how often. How often mean कितने मरतबा. And once, twice, three times. Once mean एक दफ़ा, twice दो दफ़ा, three times, five times, six times. जितनी भी फिर हम टाइम कहें तो इतनी दफ़ा. And also I think structure we will discuss. मेरा ख्याल है, मेरा सोच है. And there will be also discussion about scale or taking notes, reading a travel brochure schedule. Travel means सफ़र का schedule या time table हम कैसे discuss कर लेंगे. Schedule we will pronounce. In Britain English we pronounce it schedule, but in American English it is pronounced it schedule. And similarly there will be writing a paragraph from notes. How to write a paragraph from notes we will also discuss that. What's the title? Good. I'm going to be busy. मेरा इरादा है कि मैं मसरूफ़ हो जाऊँगा. ये be going to एक्टिविटी है. be subject plus be going to plus verb first form plus rest of the sentence. This structure is used to talk about intention or talk about plans. मंसूबों या इरादों के बारे में ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस बी गोइंग टू प्लस वो फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. एंड यू नो ब्रदर दैट व्हाट आर द फॉर्म ऑफ बी? As or am. There are three forms of be. Sometime instead of be we use as, sometime we use or, and sometime we use am. So according to the subject, if the subject is he, she, it and singular noun, then we use as. If the subject is you, we, they and plural noun, we use are. And if the subject is I, so we use am. So be going to adjective का ये structure है और this structure we use to talk about intention. To talk about what? Intention mean इरादों के बारे में और to talk about plans. Plans and sometimes we also use that to talk about prediction. पेशन गोई के बारे में भी हम ये यूज़ कर लेंगे. this structure इंशाल्लाह we will discuss it in detail. So I'm going to be busy mean मेरा इरादा है कि मैं मसरूफ़ हो जाऊँगा. ख्याल ये है, सोच ये है कि मैं मसरूफ़ हो जाऊँगा. So Mike stops by Bob's house. Mike आता है and stops by रुकता है. Bob's house बाब के घर के करीब रुकता है. He rings the bell. वो घंटी बजाता है. Rings mean बजाता है, bell mean घंटी. He rings the bell. वो घंटी बजाता है. Bob opens the door. और बाब दरवाज़ा खोलता है. So what does Bob say? Hi Mike. गुड. हाई माइक, कम इन. अस्सलाम वालेकुम माइक, अंदर आओ. सो माइक जवाब देता है थैंक्स बॉब. बॉब आपका शुक्रिया. आई कैंट स्टे फॉर लॉन्ग. मैं ज़्यादा क़याम नहीं कर सकता हूँ. स्टे मीन क़याम करना, फॉर लॉन्ग लंबे वक्त के लिए मैं नहीं रुक सकता हूँ. आई एम गोइंग टू प्ले बास्केटबॉल. आई एम गोइंग टू मेरा इरादा है कि बास्केटबॉल खेल लो. बास्केटबॉल खेलने का इरादा है. डू यू वाना कम. क्या आप मेरे साथ जाना चाहते हैं वो बास्केटबॉल खेलने के लिए. सो व्हाट डज बॉब आंसर? थैंक्स माइक.
गुड, थैंक्स माइक। माइक आपका शुक्रिया। बट नॉट दिस मॉर्निंग, इस सुबह में मेरा इरादा नहीं है। आई एम गोइंग टू बी बिज़ी टुडे, मेरा इरादा है कि मैं तो आज बहुत मसरूफ़ होगा। तो माइक जवाब देता है रियली, यकीनन आप मसरूफ़ होंगे। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आपके किस काम करने का इरादा है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू। सो बाब क्या जवाब देता है, गुड, आई एम गोइंग टू पेंट माई रूम, मैं तो कमरे को पेंट करने का इरादा है, मंसूबा है। सो माइक, पेंट योर रूम, आप पेंट करते हैं अपने कमरे को। है दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क, ये तो काफ़ी वो वर्क है, बहुत ज़्यादा काम है। सो बाप क्या जवाब देते हैं, गुड, या इट इज़, हाँ ये काफ़ी काम है। बट यू नो व्हाट, लेकिन आपको पता है क्या, आई एन्जॉय इट, मैं इससे लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ, इसको पसंद करता हूँ, ये मेरा फेवरेट काम है। सो बाब, गुड, व्हाट कलर आर यू गोइंग टू पेंट इट, मीन कौन सा कलर आप इसको देने का इरादा है। तो बाप क्या जवाब देता है, वाइट, मेरा तो वाइट कलर देने का इरादा है। तो माइक, वाइट, सफ़ेद कलर, दैट इज़न्ट वेरी प्रैक्टिकल, ये तो बहुत प्रैक्टिकल अमली कलर नहीं है। तो बाप जवाब देते हैं, नो इट इज़न्ट बट आई लाइक वाइट, इट्स नाइस एंड ब्राइट, मेरा पसंदीदा कलर वाइट है, ये उम्दा और चमकदार कलर है। तो माइक क्या जवाब देती हैं, गुड, हाउ ऑफ्टन डू यू पेंट योर रूम, आप अपने रूम को कितने मरतबा पेंट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं उनसे। तो बाप क्या जवाब देता है, गुड, वंस, समटाइम ट्वाइस अ ईयर, कभी कभार 2 दफ़ा और अक्सर 1 दफ़ा तो मैं साल में कर देता हो रंग इसकी। सो माइक, ट्वाइस अ ईयर, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ट्वाइस अ ईयर, 2 दफ़ा आप पेंट करते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा है। यू श्योर लाइक टू पेंट, यकीनन आपको पेंटिंग बहुत पसंद है। तो बाप क्या जवाब देते हैं, या आई डू। ओ, इज टेड गोइंग टू प्ले बास्केटबॉल टू, टेड भी बास्केटबॉल खेलने का इरादा है उनका। तो माइक क्या जवाब देता है, गुड, नो ही इज़ गोइंग टू रनिंग दिस मॉर्निंग, वो तो रनिंग के लिए जा रहा है। वेल आई हैव टू गो नाउ, अभी मुझे जाना है। सी यू एट स्कूल मंडे, खुदा करे कि मंडे के दिन स्कूल में मुलाकात हो जाए। तो माइक क्या कहते हैं, ओ नो, लुक एट दोस क्लाउड, इन क्लाउड को ज़रा देखो, इट्स गोइंग टू रेन अगेन, फिर पेशन गोई ये है कि बारिश हो जाए, बारिश की पेशन गोई है। इट्स गोइंग टू रेन अगेन, दैट मीन्स नो बास्केटबॉल, इसका मतलब है कि हम बास्केटबॉल नहीं कर सकते हैं। तो बाब उससे कहता है कि वेल यू कैन स्टे एंड हेल्प मी पेंट माई रूम देन, अगर बास्केटबॉल बारिश की वजह से नहीं कर सकते हो तो फिर हमारे साथ क़याम करके मेरे कमरे के रंग करने में आप मेरे साथ मदद कर लेंगे। तो माइक क्या जवाब देता है, वो कहता है कि दैट्स एन आइडिया, ये भी एक अच्छा नज़रिया है, बट आई थिंक आई शुड गो होम एंड क्लीन माई ओन रूम, मेरा ख़्याल है कि मुझे घर जाकर अपना कमरा साफ़ करना चाहिए। इट्स अ मेस, मेरा कमरा जो है ये मेस है, सब कुछ बेतरतीब पड़ा हुआ है। इट्स अ मेस, सी यू लेटर बाब, बाब खुदा करे कि बाद में मुलाकात हो जाए। थैंक्स फॉर शॉपिंग, थैंक्स फॉर स्टॉपिंग बाई माइक, माइक यहाँ पर क़याम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यही ब्रदर एंड सिस्टर अबाउट द मेन प्रेजेंटेशन ऑफ द लेसन। इन दिस लेसन वी आर टॉकिंग अबाउट बी गोइंग टू स्ट्रक्चर। बी गोइंग टू स्ट्रक्चर वी यूज़ फॉर व्हाट, फॉर इंटेंशन एंड फॉर प्लान, इरादों के लिए ये इस्तेमाल होता है। एंड व्हाट आर द फॉर्म ऑफ बी, या देयर आर 3 फॉर्म ऑफ बी एज R and M. We have written over here as well. So according to the subject, we use as O or M with B, right? For example, I have written some verb over here. What are these verbs? What's the first one? Buy. Buy mean खरीदना. Belt बनाना. Take डिलेक्सिकल वर्ब है, डिफरेंट माने देते हैं मुख्तलिफ जगहों में। गो मीन जाना, सेल फ़रोख्त करना, कॉल करना, पेंट करना, साफ़ करना, क्लीन। फॉर एग्ज़ाम्पल बिलाल का मोटर कार ख़रीदने का इरादा है, तो हम ये कैसे बोलेंगे, बिलाल इज़ गोइंग टू बाई
a car. Bilal is going to buy a car. राइट बिलाल के कार ख़रीदने का इरादा है. सो बिलाल इज़ गोइंग टू बाई अ कार. इसका मतलब नहीं है कि वो इसी तरह जा रहे हैं ताकि बाई अ कार, बल्कि इसका मतलब ये है कि उनका इरादा है. बी गोइंग का इरादा यही इस स्ट्रक्चर में बी गोइंग टू इंटेंशन या प्लान्स के लिए इस्तेमाल होती है. और अगर हम कहें हम एक घर ख़रीदने का इरादा रखते हैं, सो गुड, वी आर गोइंग टू बाई अ कार. और मैं एक लैपटॉप ख़रीदने का इरादा करता हो, आई एम गोइंग टू बाई अ लैपटॉप. सो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू विल यूज़ एज, ओ और एम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. इसी तरह सलीम एक घर बनाने का इरादा रखता है. Good. Salim is going to build a house. It means that Salim has bought a plate of land. He has also bring some bricks or blocks, and his intention is to make a house. तो ये सब कुछ उसने किया है और इरादा है कि घर बना ले. या खालिद का लैंग्वेज क्लास में एडमिशन करने का इरादा है. God, Khalid is going to take admission in the language class. सलीम का सऊदी अरब को जाने का इरादा है. Going to go to सऊदी अरबिया. जब जाना हो तो फिर आप दोबारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह एक और गो लगाएंगे. सलीम इज़ गोइंग टू गो टू सऊदी अरबिया, टू गो टू कलाम, टू गो टू चतराल, जो भी हो. राइट. इसी तरह खालिद का घर फरोख्त करने का इरादा है. सेल हिज होम. या हमारा तुमको कॉल करने का इरादा है. वी आर गोइंग टू कॉल यू अबाउट द एग्ज़ाम. गुड. और मेरे वालिदैन का घर पेंट करने का इरादा है. माई पेरेंट्स आर गोइंग टू पेंट द रूम. या और सलमा का घर की सफाई करने का इरादा है. To clean the house. So be going to, our today lesson is that be going to का माना जाना नहीं है, but it means इरादा. जब हम इरादे के बारे में बात करते हैं कि हमारे मुस्तक़बल में किसी चीज़ का इरादा है, किसी काम करने का इरादा है, तो इरादे या मंसूबे के लिए हम be going to स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं. और be के ये 3 फॉर्म है. as or am according to the subject we will use that. Already we have discussed it in level 1 in detail. I hope you will have learned this activity, dear viewers and listener. Try to watch the videos regularly and try to share the videos with your dear and near one. Thank you so much. Khuda Hafiz.